Good morning and welcome back to my YouTube channel. So, in the last video of physics that I've uploaded for class 9, that was an introduction video along with how to read physics and all. And I have started the chapter of motion in that video. So, continuing that video, this is the part 2 of that video. So, last class we have done till distance displacement. So, hopefully you have revised the things and matlab, you have at least went through the things once. So last class we have covered motion, physical quantities, unit, and distance and displacement topic. In this class we are going to cover first we are going to start with distance and displacement, then we are going to move to speed and velocity, then we are going to move to uniform and non-uniform motion, and after that we will go to move on to the next topics. But let us first finish this much. Okay. So last class motion, what is motion and things that I have done, you have hopefully you have revised the things. Otherwise, things will complicate as we move on. Okay. So you have done the observer, object, reference point, then state of motion. It can be rest, motion. What is motion? Very important question for your examination. Examples of motion, then physical quantities, length. Physical quantities you all know that those quantities which can be measured are called physical quantities. Okay, it is of two types in our physics, that is scalar quantity, vector quantity. So what is scalar, what is vector, how it is represented, you must know all these things. Okay. Apart from that, units means the number is the specific number. Suppose we are saying length is equals to 5 meters. So 5 is the number. So that is basically 5 is the number, that is a numerical value. Along with that, we are having a unit, that is meter. This meter is a unit. So this you have to know that. So to understand the units, we are having two types of units in our physics world at your level. That is CGS unit, that is centimeter gram second unit, and one is standard unit, that is SI unit. ठीक है? Nothing much to be discussed at your level, I think so, about units. But always remember one concept. I'm more focused on concepts because 9-10 में ना, apart from going through factual basis, you must you must focus on the conceptual things because these are the things that will build your blocks and that will help you to succeed. Okay, first of all, let me tell you that this video is not going to be too long. I will just teach you 30 minutes because I am also having my works lagging behind. So I can just teach you 30 minutes. So let's see how much we can cover and wait for the next class for the further videos. Okay, so let's get started with the video. So the concept that I'm telling in the unit chapter is, see, if you are writing length is equals to 5 meter, okay, at the same time you can write length is equals to 500 centimeter, okay, 500 centimeter you can write. So this is what, by this we what concept we will learn, you see. So this particular thing is the numerical value, number or numerical value, numerical, and this is the unit. Okay, this is the unit. Here also the same case. This is the numerical value and this is the unit. Okay, so always remember that the number and the unit remains constant. It can be said number. So always remember the concept that these two are the same things, just difference is that मतलब what I mean to say, listen nicely, that थोड़ा ध्यान से सुनो इस बात को. 5 meter and 500 centimeter both represent the same thing. मतलब 5 मीटर, अगर आपके पास 5 मीटर लैंड है, 5 मीटर में अगर आप चॉकलेट्स फेंक मतलब 5 मीटर का आपके पास लैंड है, आप उसमें चॉकलेट्स फेंक रहे हो, तो आप उसमें जितना चॉकलेट्स फेंक पाओगे उतना ही चॉकलेट्स, उतने ही नंबर ऑफ चॉकलेट्स आप 500 सेंटीमीटर लैंड में भी फेंक पाओगे. दैट मीन्स 5 meter and 500 centimeter both are same thing.
तो एक ही चीज है भाई, दो अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, थिंग्स आर सेम, दो अलग अलग तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ये चीज हम लोग लिखते कैसे हैं? अभी आपको, अगर आपको ये चीज लेने में दिक्कत हो रहा है, अभी आपको मतलब ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है आपका बॉडी, धीरे धीरे करेगा। आप दोबारा सुनो वीडियो को, एक ही तरीका है भाई, दोबारा सुनो वीडियो को। ठीक है, देखो, इसका मतलब हो गया कि 500 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू मेरा वर्ड्स। हम जो तुमको भी सिखाए उसके अकॉर्डिंग हम लिख दिए, ये दोनों एक ही चीज है तो एक इक्वल्स टू लगा दिए। एक्चुअली क्या होता है ना, तुम्हारे पास जो ये आएगा वो आएगा तुम्हारा क्या, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है और जो कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, वो होता है कि तुम्हारा नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। मल्टीप्लाइड बोलना एक्चुअली सही नहीं होगा, नंबर और यूनिट, नंबर साथ में यूनिट। हम दूसरा कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर और यूनिट जो होता है ना, कांस्टेंट होता है। मल्टीप्लाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर और यूनिट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे नंबर आपको दिखा कि आपका नंबर जब 5 था तो आपने यूनिट ले रखा था मीटर, तो वो भी कांस्टेंट ही हुआ। और जब आपने नंबर को 5 के जगह 500 लिया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूनिट ले रखा था सेंटीमीटर, तो वो भी कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा, तो हमारा 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर दोनों फाइनली इक्वल हो गया। तो यहीं से हम लोग बेसिकली ये बात आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मीटर, इसका मतलब है। और एक बात ध्यान रखना, नंबर और यूनिट, अगर आप बाई चांस दोनों का, अब दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन को यू हैव टू कीप इट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधी मतलब देखो, इसका मतलब यही है कि जो नंबर है, वो नंबर को अगर आप इंक्रीज करते हो, नंबर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो यूनिट को ऑटोमेटिक आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर को यदि आप इंक्रीज करते हो तो आपको यूनिट को ऑटोमेटिक डिक्रीज करना पड़ेगा, यूनिट को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका जो ये है कांस्टेंट रहेगा। तो यही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। देखो, 5 एक छोटा नंबर है कंपेयर टू 500, तो हम लोग क्या किए, 5 से 500 किए, मतलब नंबर को इंक्रीज किए, एट द सेम टाइम यूनिट को छोटा किए, मतलब मीटर से हम लोग सेंटीमीटर कर दिए। तभी हमारा इधर में सेम रह पाया, कांस्टेंट रह पाया, सेम रह पाया, कांस्टेंट रह पाया। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू जो था वो कांस्टेंट रह पाया। इसका मतलब अगर 500 मीटर का मतलब इतना बड़ा लैंड होता है, तो 500 सेंटीमीटर में भी इतना बड़ा ही लैंड होगा, सपोज करो। दोनों में ही इक्वल लैंड होगा, इतना ही बड़ा का। ये लैंड हम लोग अगर 500 मीटर, 5 मीटर लिख रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 500 सेंटीमीटर। दिस इज वॉट concept I want to tell you. So please highlight this concept that I have explained you right now. This is an important concept. Unit multiplied by number remains constant. ठीक है, इसी से तो थोड़ा न्यूमेरिकल सिस्टम डेवलप हुआ है पूरा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव करते हैं इसके। और हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखे थे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। एस और एस ऊपर मतलब वेक्टर का साइन से, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जो ध्यान रखना है वो है कि तुम्हारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर जा रहे हो, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। मेरी मर्जी है कि मैं किसी भी रास्ते से जा सकता हूँ, डिस्टेंस जब निकाल रहे हैं हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, बट जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो हमको स्ट्रेट पाथ से ही जाना पड़ेगा। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है, जो मतलब होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है, उसका सीधा साधा मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स पकड़ ले, उस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो तुमको सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दिखेगा, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में आप किसी और आपके मनमर्जी हिसाब से नहीं जा सकते हो। आपको एक पाथ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करता है, समझ रहे हो ना। आपको एक स्पेसिफिक पाथ दिया हुआ है, एक रास्ता दिया हुआ है, उसी रास्ते से आपको जाना है। आपको कोई दूसरा गली घूम के नहीं नहीं पहुंचना है डेस्टिनेशन को। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के पास आपका वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, तो और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगा। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात और भी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो इफ अ बॉडी इज मूविंग। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ अ बॉडी इज मूविंग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डिस्टेंस जो है, इट कैन बी जीरो, सॉरी इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। बट तुम्हारा देखो, इसमें देखो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, समझ रहे, ये जीरो हो सकता है, कैन बी और कैन नॉट बी। अब देखो कैसे,
ए पॉइंट से तुमको बी पॉइंट तक जाना है मान लो। ठीक है, तुम इस तरह से गए बी पॉइंट तक इस पाथ के थ्रू, तुम इस पाथ के थ्रू वापस ए पॉइंट पे लौट गए। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको दिक्कत होगी समझने में, तो हम थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, आपको बताते हैं कैसे हो रहा है ये चीज। ठीक है, आप सपोज करो आप इस पाथवे से जा रहे हो यहाँ तक, आप इस पाथवे से यहाँ तक पहुंच रहे हो ए से बी तक। ठीक है, और आप लौट रहे हो बी से ए पाथवे के थ्रू। तो आपका आप फाइनली इसी जगह पे खड़े हो, बट आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा वो हम बताते हैं। मान लो ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये मान लो 5 मीटर है, और ये भी मान लो 10 मीटर है। ठीक है, इस तरह से आपको ठीक है, आपने स्टार्ट किया यहाँ से, आप घूम के वापस ए पे ही आप घूम के वापस ए पे ही आ गए। यही सेम पाथ अगर आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे, ए से बी तक का लिए आप ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है, ये पाथ तो पहली बात डिस्प्लेसमेंट के लिए जाएगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथवे, तो आप तो पहले इस पाथ के थ्रू जा ही नहीं सकते। आपको जाना पड़ेगा भाई इस पाथ के थ्रू, ये आपको जाना भी इसी पाथ के थ्रू पड़ेगा, और आपको लौट के भी इसी पाथ के थ्रू आना पड़ेगा। ठीक है, आपको वापस घूम के ए पे ही आ जाना है, तो आपको लौट के भी इसी पाथ के थ्रू आना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट केस, बिकॉज आपको डिस्प्लेसमेंट में आपको पाथ ऑलरेडी क्वेश्चन बोल के रखेगा, आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। और शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी मतलब सॉलिड्स में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होता है, और कोई लाइन नहीं हो सकता। ठीक है, सॉलिड्स नहीं बोलना गलत होगा, मतलब कोई भी ट्राइंगल वगैरह जो भी आप देखते हो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात को समझा रहे हैं, देखो इस केस में तुमने यहाँ पे 10 मीटर या यहाँ पे भी 10 मीटर, तुमने कवर कितना डिस्टेंस किया, तुमने डिस्टेंस कवर किया कितना, 20 मीटर इस केस में। ठीक है, बट तुम इसी केस में तुम जो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तुमने डिस्प्लेसमेंट 0। अब हम जो तुमको बताना चाह रहे हो ध्यान से समझो भाई। देख, तुमने यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स एक टीचर से पढ़ना जरूरी है। देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुमने गए, तुम गए। ठीक है, अब तुम पहली बार जो पाथ फॉलो किए उस पाथ का नाम है मान लो पाथ 1, और ये जो दूसरा पाथ है ये है अपना बेसिकली पाथ 2, और यहाँ पे भी और ठीक है ऐसा है। तो हमने दो केस लिया, एक ये वाला केस और एक इधर वाला केस। ठीक है, अब देखो, तुम्हारा पाथ 1 से जब तुम जा रहे हो तो तुम्हारे पास डिस्टेंस मतलब क्या बोले, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तुमको जो मिलेगा डायरेक्टली ऐड कर देना। तो अगर हम इस पाथवे की, अगर हम केस 1 के लिए, तुम ध्यान से भाई देखो मेरा चीज क्या समझाना चाह रहे हैं। ये केस 1 है, मान लो अगर हम केस 1 के लिए तुम्हारा डिस्टेंस निकाले तो कितना आएगा। देखो, डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब क्या होता है भाई, एक्चुअल पाथ। तुम ए से बी तक गए, तुम पहले यहाँ से यहाँ तक गए, पहले ए से गए तुम। मान लो हम यहाँ पे और भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए सी और डी मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तुम बेसिकली क्या किए, तुम ए से सी तक गए, और फिर सी से डी तक गए, फिर डी से बी तक गए। अब देखो, तुम ए से सी डिस्टेंस जब नापते हैं तो हम लोग एक्चुअल मतलब हम लोग को उतना दिमाग लगाना ही नहीं है। जितना है एक्चुअल, जितना भी नंबर दिए सबको ऐड कर देना, जितना एक्चुअल पाथ जो है उसको ऐड कर देना। यहाँ पे एक्चुअल पाथ कितना है, 5 मीटर ए से सी तक का, फिर उसके बाद हो जाएगा, मतलब आपको सबको ऐड करना है। समझ रहे हैं, हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अभी तुम नए नए हो ना। ए से ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। ठीक है, इतना आप पहुंच गए डी तक। उसके बाद आपको बोला कि आपको रूट जो दिया गया था, आपको घूम के वापस ए पे आना था। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी ए। तो सबको ऐड करोगे, नॉर्मली ऐड कर दो, कुछ करना होता नहीं है। आपको देखोगे सबको ऐड करने का 5 10, आपको देखो सबको ऐड करने का आपको 30 मीटर जो है आपको डिस्टेंस मिल गया। इसी क्वेश्चन इसी पार्ट में अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, समझ रहे हो। इसी क्वेश्चन में अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब तुमको बोला कि ए से भैया ए से चालू करो और ए पे ही घूम के आ जाओ, तो तेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है कि आप वहीं पे खड़े रहो। समझ रहे हो, हम ये बोल रहे हैं, आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, आप घूम के उसी पॉइंट पे आ गए, तो सबसे सबसे छोटा पाथ क्या है, इसका छोटा पाथ है ही नहीं भाई, ये चालू ही नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ये तो चालू ही नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि आपको ए से लेके ए पे ही पहुंचना है। तो ए से ए का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है कि एक डॉट और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 आएगा, 0 मीटर आएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज आपने देखो, आपने अपने तेल खर्चा करके आप घूम के आए इतना दूर तक गाड़ी लेके, बट स्टिल आपका जो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो 0 है। बिकॉज आपको अब ये हम निकाल के भी दिखाते हैं।
ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट आपको बोल दिए 0, बस विश्वास मत करो आप। बोलने पे हर चीज विश्वास नहीं करना चाहिए। फिजिक्स है भाई, कुछ कुछ चीजें बता ही सकते तुमको। देखो, यहाँ पे क्या है कि ऊपर बार है, मतलब डायरेक्शन देना पड़ेगा मेरे को। अब देखो तुम्हारे लिए हम डायरेक्शन को अभी अभी तुम्हारे लेवल बहुत सिंपली समझो। एसी ऊपर की तरफ है, तुम अपने लेवल पे जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम क्या करना, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लेके चलना। तुमको भाई इससे ज्यादा अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो वेक्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो भाई वो थोड़ा अच्छे लेवल पे चले जाएंगे अभी अगर वेक्टर्स पढ़ लोगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई, इस चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने के लिए। और मतलब ये एक टफ चैप्टर माना जाता है क्लास 9 का। सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप 11 से सीख सकते हैं, बट मैं पहले बोलूंगा अपना जो बेसिक्स है ना उसको पहले क्लियर करते हैं। फिर देखा जाएगा ना 11 12 यार। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, मतलब बोल सकते हो भाई। देखा जाएगा, फिर हम हेल्प करेंगे तुम्हारे। देखो अभी जो हम तुमको सिखा रहे हैं सबके लिए सिखा रहे हैं। बेसिक पे पहले ध्यान दीजिए। ऊपर को ऑलवेज पॉजिटिव लोगे, नीचे वाले को ऑलवेज नेगेटिव लोगे, इधर में ऑलवेज पॉजिटिव लोगे और इधर में ऑलवेज नेगेटिव लोगे। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन सेंस होना चाहिए। समझ रही है, अभी तक आपने जो कार्टेशियन प्लेन पढ़ा ना, मतलब पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन, वही आपका कार्टेशियन प्लेन को आपको रेफरेंस लेके चलना है एक्स वाई प्लेन को। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को रेफरेंस लेना है, इधर वाला आपको एक्स वाई पता है क्या होता है, हम उसको डिटेल में भी नहीं बताने वाले। अब इसको लेके आपको डायरेक्शन के लिए आपको ये वाला चीज को ड्रॉ करना होगा या फिर इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वरना आप डायरेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप अब डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, इन सब क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो आपको ये चीज दिमाग में रखना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग बात करें ए से सी तक, तो हम लोग क्या करें, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब तुम ड्राइंग में देखो, केस 1 का जो ड्राइंग है देखो, उसमें देखो ए से सी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो देखो ऑब्वियसली ए से सी जब जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग का जो डायरेक्शन होगा कैसा डायरेक्शन है। अभी तुमको क्या है ना, वेक्टर्स का एक्चुअली वेक्टर्स का साइन ऊपर लगता है। तो एक्चुअली तुम एक काम करो, ऊपर भी साइन लगा दो। ठीक है, ऊपर साइन लगा दो, बट यार हम तुमको ये अभी नहीं सिखाएंगे ऊपर साइन लगाना। ठीक है, तुम अभी इतना मत सीखो यार, ऊपर साइन लगाना, ऊपर साइन लगाना आई थिंक तुम्हारे लेवल पे जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो मेरे को बताना, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लेवल पे जरूरी नहीं है। अब ए से सी तक तुम जा रहे हो, यहाँ पे क्या है, ऊपर है तो तुम ऑब्वियसली प्लस ए सी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद तुम पॉजिटिव फिर अब ऐड करना है तुम्हारे इधर से। अब सी से डी तुम देखो, तुम राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो ऑब्वियसली +10 मीटर लिखोगे। और फिर डी से बी तुम नीचे की तरफ आए हो तो ऑब्वियसली -DB लिखोगे। सॉरी, ऐसे मत लिखना, एग्जाम में गलत हो जाएगा तुम्हारा। मतलब जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है वो लिख सकते हैं यार। प्रैक्टिस करते तुम लोग को भी हो जाएगा, तुम लोग भी मेरे लेवल पे आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डी से बी तक जाने के लिए पॉजिटिव लगाना -5 मीटर, क्योंकि नीचे की तरफ है। उसके बाद बी से ए तक उल्टे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो ऑब्वियसली माइनस लगाओगे, -10 मीटर। अब देखो, अरे यार ठीक है, हमने तो डाटा ही लिख दिया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ रहे हो ना चीजों को। तुमको भी दिक्कत होगा तो हम पूरा ही लिख देते, रुको यार 1 सेकंड। देखो, प्लस ए सी हो गया, उसका तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा +CD, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -DB, और यहाँ पे हो जाएगा -BA। ठीक है, -BA। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो तुमको क्या दिख रहा है, देखो इसको सॉल्व करने में तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा +5 प्लस +10, उसके बाद प्लस +DB, देखो +DB मतलब प्लस नहीं माइनस होगा, -5 +-10। अब देखो मीटर लिखना है, लिखो अभी, मतलब मीटर कॉमन में भी लिख सकते हो बाद में। पर तुम लास्ट में यूनिट मेंशन करोगे, एग्जाम वाला कट जाएगा, तो -10 कट गया, +10 दोनों कट गया। फाइनली तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारा आ गया 0 मीटर। तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 0 मीटर। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 आया, इस केस में इतना है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो केस है, इस पर अपन देखते हैं। तो देखो डिस्टेंस 0 कभी नहीं होगा। देखो, इसमें देखो हम क्या कहिए, इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहे हैं और आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला को हटा दो, ये अपना है केस 2। स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहे हैं, उसी लाइन के थ्रू आ रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, यही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, और बीच में होंगे, वापस घूम के ए पे ही आ जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा 10 + 10, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्टली 10 + 10 20 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ। ए से बी जा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे +AB, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, उल्टा घूम के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ऊपर बार लगाओगे, तो जब से ही बार लगेगा वेक्टर हो जाएगा भाई। बी से ए जाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस हो जाएगा, -BA। तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आएगा बताओ बेटा, +10
प्लस, यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया, प्लस -10, दैट इज दोनों कट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा अभी भी जीरो आ रहा है, बट तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं आया है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कभी नहीं आएगा, मतलब डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? धीरे धीरे जाएगी चीजें, टाइम देना पड़ेगा आपको फिजिक्स को। ठीक है, अब देखो भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन पूछेगा तो आप सिंपली लिखना एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय ट्रैवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। अब लिख सकते हो डायरेक्शन, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल हम जो बताएं उतना लिख के आना यार। उसके बाद तुम्हारा वही स्केलर क्वांटिटी बता ही दी तुमको, बस ये एक्चुअली देखो, हम तुमको बता रहे हैं और हम टैली करवा रहे हैं अपने, जो मैंने जो नोट्स बनाया था ना अपने 9th स्टैंडर्ड में, तो वो नोट्स मेरे पास कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ आकाश 9th में, तो मैंने वहां से नोट्स बनाए थे। तो और भी कुछ मतलब अपना भी कुछ नोट्स था उसमें ऐड किया हुआ, तो उससे मैं टैली कर ले रहा हूँ कि मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ कि नहीं। तो आप प्रेशर मत लो बिल्कुल चीज़ों का। तो व्हेन द बॉडी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट में भी वही लिखा हुआ है यार, व्हेन द बॉडी मतलब वही लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ भी देते डिस्प्लेसमेंट। व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along the direction, ऑब्वियसली आपको सिंपली इतना नहीं लिखना है, ये सब कचड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमारे भी टीचर्स लिखवाते थे, हम लिखते थे यार, उस टाइम समझ में नहीं आता था उतना, तो इसलिए आपको शॉर्ट में बताते रहे, जितना एक्चुअल लिखोगे काम आएगा। तो वो है मेनली शॉर्टेस्ट पाथवे बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड it is known as the shortest path between any two points is known as displacement। और एक बात यहाँ पे लिख देना यार, शॉर्टेस्ट पाथ खाली बोलने से नहीं होगा, along along of the body along with direction, यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना है यार, along with direction। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द बॉडी along with डायरेक्शन। आई थिंक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर समझ में आ गया तुम लोग को। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे कुछ करवा मतलब करवाना था कि, तुम लोग को देख लेते हैं, कुछ काम का होगा तो करवा देंगे। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन देख लो। ए से बी, बी, रुक रुक, ए से बी, बी से सी। ठीक है, अब तुमको बोला गया ये है तुम्हारा पाथ, तुम ए से स्टार्ट करके सी तक पहुंच गए। तुमको बोला गया इस क्वेश्चन में भाई कि डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, आंसर लिखते वक्त कितना लिखोगे भाई बताओ? डिस्टेंस एस कितना आएगा? अच्छा डाटा दे देते हैं तुमको, यहाँ पे 10 मीटर है, ये 20 मीटर है। आंसर आएगा क्या 10 20 में से? रुक जाओ एक सेकंड, तुम्हारे को इजी करते हैं क्वेश्चन। एक सेकंड रुकना। देखो मेरे पास 2 3 डाटा तो पड़ा हुआ है, बट हम थोड़ा अच्छा डाटा दे रहे थे चाह रहे तुमको। तो मैं एक काम कर, तो ये डाटा ले 5 और 12, आई थिंक आ जाएगा। 3 4 5 सबको पता होता है यार, पाइथागोरस थ्योरम में आता है, जैसे आपको याद होना चाहिए तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, एस देखो क्या होता है। अब एस जो होता है, डिस्टेंस कितना होगा बताओ? सिंपल है भाई, ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल्स टू 5 + 12 17 मीटर। मीटर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। ठीक, समझो कॉन्सेप्ट, समझो क्वेश्चन बन जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे भाई? तुम सोचो हमको जाना है ए से सी तक जाना है, मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पड़ेगा? मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पड़ेगा? सोच बेटा सोच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पड़ेगा? ए से बी तक जाना, हम क्या यहाँ से कैसे, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्या बताए थे, याद करो जब पढ़ाते वक्त? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन। अब ए से सी के बीच में स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा सर? ये तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है यहाँ पे, अब कौन सा ले सर? बहुत कंफ्यूजन। देख भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी के बीच में जो होगा वो है, समझ, अगर किसी से गलती होता भी कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने में। ये है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी। भाई जो दोनों पॉइंट्स, तुमको दूसरा पॉइंट्स को देखना ही नहीं है। तुमको क्वेश्चन बोल देगा भाई तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ए है, तुम्हारा फाइनल पॉइंट सी है, तुमको सिर्फ उन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करना है, तुमको इससे अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर अपना नजर डालना ही नहीं है।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स पकड़ो, एक लाइन खींच दो और कुछ नहीं, वही आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो रेड वाला लाइन है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ए सी इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे? अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आपका एसी होगा, हमको पता है एसी निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है क्लास, नहीं पढ़ा है भाई? पढ़ा रखा होगा 8 9 में पाइथागोरस थ्योरम। नहीं पढ़ा है तो हम बता दे रहे हैं, देख लो। यहाँ पे लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हम डिस्टेंस निकालने के लिए गए थे, डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे, सॉरी। बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको समझना होगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलना चाहता है। देखो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो बोलता है उसको पहले हम लिखते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ two sides of a right angle triangle is equal to the hypotenuse, is equal to the square of the hypotenuse। समझ रहे हो? Two adjacent sides enclosing the right angle, दोनों साइड्स का, आपको हम इतना बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, आप पहले देखो यहाँ पे हम क्या होता है लिख रहे हैं इस डायग्राम का अकॉर्डिंग, उसके बाद हमको समझा रहे हैं इंग्लिश अंग्रेजी में। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये एक थ्योरम है भाई मैथ्स का, इसको तुमको ऐसे जैसे का तैसे रट लेना है, क्योंकि थ्योरम रटना ही पड़ता है। ट्रिगो का बोलो या फिर इसका बोलो, मतलब हम लोग तो उसी से काम चलाते थे, रट के ही। थ्योरम रटना ही पड़ता है। अगर थ्योरम का डेरिवेशन होता है वो आप मैथ से पढ़ते हैं यार, उतना याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो आपको थ्योरम पता होना चाहिए झट 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 बनाने के लिए। अब देखो ये होता है थ्योरम। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तुम्हारा ए बी जो है ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो आपको दिख रहा है बेस स्क्वायर। ये बेसिक थोड़ा समझा रहे हैं, सबको फिजिक्स में नोटबुक में मत लिख लेना अपना, ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा है। बेस स्क्वायर, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के लिए ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस। मेरे को तो वही पता है भाई, हाइपोटेनस ही होता है ना वो। ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, लिख देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। और आप ए सी आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनस। देखो भाई, हाइपोटेनस का स्पेलिंग गलती हो सकता है, पहले बता देना, भूल चुके स्पेलिंग, तो एक बार देख लेना, बट ये हाइपोटेनस होता है। तो इन तीनों को जब हम लोग स्क्वायर करोगे इस तरह से, इज इक्वल्स टू डाल के, इसका भी स्क्वायर, बीच में इज इक्वल्स टू भी डाला हुआ है, अच्छे से ध्यान देना इस बात पे, और इधर में एडिशन, तो यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आपको खाली कैलकुलेशन, ये सब भाई, ये वाला लाइन फिजिक्स में मत लिखना, ये वाला लाइन फिजिक्स में मत लिखना भाई। ठीक है, डायरेक्टली ऊपर से नीचे आओगे, अब आप लिखना चालू करो अपना थ्योरम। अब देखो क्या है तुम्हारा, देखो, तो ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालना सीखे हुए ऑलरेडी, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। और ए सी को हम लोग इसको इस तरफ ले लो, इसको इस तरफ ले लो, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों का ऐड करो कितना आएगा, इन दोनों का ऐड करो 169 होता है आई थिंक, देख लो ऐड कर लो 169। ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169 हो जाएगा। फाइनली एसी का वैल्यू कितना आएगा इसका, 169 अंडर रूट 13 का होता है, एसी का वैल्यू 13 मीटर आ गया, तो ये आपका 13 मीटर आंसर, डिस्प्लेसमेंट आपका 13 मीटर। इजी क्वेश्चन भाई, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, एक दिखा दिए, बाकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, इसलिए हम बोलते हैं जो मेथड में पढ़ाई करना है फिजिक्स में, वो मेथड को फॉलो करना है। इसको पहले रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को, फिर और क्वेश्चंस लेना अपने किताब से और प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्पीड। भाई देखो, स्पीड में कुछ भी नहीं रखा है यार, बकवास है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वही स्पीड डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है, चलेगा। तुम अभी ये चैप्टर है ना, तुमको जो बेसिक समझना है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अगर ये दोनों तरह का समझ में आया, फिर तुमको सीधे समझना है एक्सेलरेशन भाई, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये दोनों अगर दो, मतलब एक बिल्डिंग बना रहे हो ना अपना, तो उस बिल्डिंग का जो नीचे का जो दो पिलर बना रहे हो, चार पिलर जो नीचे का है, वो चार पिलर ही है तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगर ये खिसक गया ना तो तुम्हारा पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा भाई,
इसीलिए पहले मजबूती से इनको समझे जो मैंने समझाया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। अगर कोई टॉपिक इसमें आपको नया दिख रहा है फिर मेरे पास कमेंट करो, हमको बताओ, ठीक है। अगर तुमको जरूरत है तो मेरे को कमेंट पे अपना मेरे को बोलो भैया अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो मैं उसमें भी दे दूंगा। आप मेरे तो व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पास जितना टाइम होगा निकाल पाऊंगा अपने शेड्यूल से और तेरे को दूंगा भाई, क्योंकि मैंने खुद भी यूट्यूब को यूटिलाइज किया है। तुम्हारे एज में नहीं, तुमसे दूर, मतलब 11 12 में, तो मुझे बहुत यूजफुल हुआ है यार। तो मैं भी अभी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। देखो, स्पीड, हम लोग स्पीड पे मूव कर रहे हैं। स्पीड का सिंपल सा फंडा है कि भाई कोई गाड़ी, समझ लो कोई गाड़ी है तो रोड पे चल रहा है, वो कितने स्पीड से चल रहा है। सपोज करो ये कार है, ठीक है, ये रोड है, ये रोड है, गाड़ी चल रहा है, सामने की तरफ चल रहा है। ये डायरेक्शन स्पीड में नहीं दिखाते हम लोग, बट अभी दिखाते अलग बात है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रहा है, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा 10 मीटर है। कितना टाइम लगेगा गाड़ी को यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। ये सब लफड़ा यहाँ पे आएगा। अब ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये जो चीज है, यही अपना स्पीड है, यही अपना स्पीड, और कुछ नहीं। एक गाड़ी कितने जोर से चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, यही अपना स्पीड है। अब देखो भाई, स्पीड का ज्यादा टाइम ना पास करते हुए, स्पीड में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। स्पीड का सिंपली आपको पूरा इसमें एक फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला एक्चुअली नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या होता है, तभी आपको फॉर्मूला याद होगा। देखो, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम और पर यूनिट टाइम, एक ही बात है। मतलब हर एक सेकंड में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो होता है स्पीड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड बोलने का मतलब है हर एक सेकंड में बॉडी जब चल रहा है तो वो हर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पीड, इसी को कहते हैं स्पीड। मतलब अगर हम लोग बोले 2 सेकंड हो गया, बॉडी कितना दूर चलेगा, तो बॉडी 10 किलोमीटर चलेगा, सॉरी 10 मीटर चलेगा, क्योंकि बॉडी 1 मिनट में बॉडी 5 मीटर चल रहा है, तो बॉडी 2 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर चल रहा है, तो बॉडी 2 सेकंड में 10 मीटर चलेगा। सिंपल फंडा। तो यही है स्पीड, यही आपको समझना है, स्पीड इसी को कहते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। को यहीं से दिख रहा होगा। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको एक बात क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये स्पीड है, तो स्पीड में दो चीज हमको दिख रहा है। एक तो 5 मीटर दिख रहा है, आपको 5 मीटर दिख रहा है, अपॉन आपको सेकंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है स्पीड में भाई। इसका मतलब क्या भैया, तो देखो 5 मीटर का मतलब, अब इसका मतलब क्या है, उसको तुम्हारा मतलब, इसको हम खोलते हैं तब तुमको और समझ में आएगा। इंटेलिजेंट वाले लोग तो समझ ही गए होंगे यार ये सब। देखो डिस्टेंस, 5 मीटर जो है वो तुम्हारा है डिस्टेंस यहाँ पे, समझ में आ गया। 5 मीटर, मीटर किस में लगेगा, मीटर लेंथ डिस्टेंस ये सब में लगेगा ना भाई, तो वो डिस्टेंस है। अपॉन, अपॉन नीचे क्या है, नीचे सेकंड है, तो उसका उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, नीचे सेकंड जो है वो क्या है, वो टाइम है। तो अपॉन टाइम दैट इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, ये क्या बोल रहे थे, क्या है, स्पीड है, तो स्पीड को इधर उतार दो, खत्म। दैट इज इक्वल्स टू स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। हो गया स्पीड का फॉर्मूला। इसको अच्छे से ध्यान रखना, खूब अच्छे से इसको ध्यान रखना। स्पीड का फॉर्मूला, देखो अब डेफिनेशन ऑफ स्पीड तुमसे पूछा जाएगा। स्पीड का डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। 9 में तुमसे यही सब पूछेगा, स्कूल स्कूल में। बाय एन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, बाकी लिख देना इज कॉल्ड स्पीड एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड ऑल। अब देखो अगेन जो डिस्टेंस में हम लोग बात किए थे, वही सब चीज आएगा। स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है, पहले आपको पता होना चाहिए। स्पीड एक किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड एक, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज क्यों स्केलर हुआ, समझो बात को। बिकॉज अब आपको इतना नहीं समझना, ये हम बस बोल रहे हैं, बस जस्ट सुनो, बोल अभी हम बोलेंगे तुम सुनोगे और भूल जाओगे, इसको अभी दिमाग में नहीं बैठाना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, समझो क्या बोल रहे हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, हाँ बोलो है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी अपॉन अनदर स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, मैं समझ रहे हो। दो स्केलर को अगर तुम डिवाइड करोगे तो एक स्केलर ही मिलेगा। अभी जो हम बात बोल रहे हैं ये वापस 11 में जाके पढ़ना, अभी तुमको समझने की जरूरत नहीं है। अभी तुम इतना ही समझो कि भाई डिस्टेंस स्केलर है, ये स्केलर है, तो ये भी स्केलर होगा। कहाँ से वेक्टर आ जाएगा भाई, समझ लो।
वेक्टर खुद से पैदा थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं आ पाएगा वैसे वेक्टर। वेक्टर पैदा करने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है, या फिर दूसरे मतलब दूसरा यहाँ पे ऑपरेशंस होता है, मैथमेटिकल दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके वेक्टर आएगा। ऐसे ही नहीं आता है वेक्टर। इसी कारण से स्पीड अपना जो है एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड स्केलर इसीलिए है, हम तुमको बता रहे हैं। इसको हम हटा देते थोड़ा सा जो मार्किंग की है। देखो, स्पीड स्केलर है बिकॉज डिस्टेंस जो है ये स्केलर है, टाइम जो है ये भी स्केलर है। इसी कारण से अपना जो स्पीड आया है वो भी स्केलर है। समझ आया यार, फंडा समझ में आया ना? बस चलो ठीक है, वेरी गुड। अब भाई क्वांटिटी कैसा स्पीड स्केलर क्वांटिटी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं वो है तुम्हारा, इसका यूनिट क्या होगा भाई? लिखे हुए ऊपर 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। तुम देखो ना, यूनिट खुद ही निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब मीटर, डिस्टेंस का यूनिट जो होता है मीटर होता है, टाइम का होता है सेकंड। ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं, टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, दोनों का जब डिवाइड मतलब दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, खत्म। तो आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड है स्पीड के लिए। उसके बाद क्या है, इतना ही है। और आपको एक बात और बता दे रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पे ये आपको लिखना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी, मूविंग बॉडी का तुम्हारा मतलब वेलोसिटी जीरो हो सकता है, बट मूविंग बॉडी का स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। ये आपको लिख लेना, जिस तरह हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए बोले, क्योंकि ये स्पीड जो है ना वो एक अपर वर्जन और एक अपडेटेड वर्जन ऑफ डिस्टेंस ही है, और कुछ नहीं है। और वो जो है मतलब तुम्हारा वेलोसिटी जो है एक अपग्रेडेड वर्जन और एक अपर वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। वो डिस्प्लेसमेंट से वो वेलोसिटी का जो उत्पन्न हो रहा है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से, और स्पीड जो है वो उत्पन्न हो रहा है डिस्टेंस से। इतना आपको समझना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, लास्ट में जो तुमको बता रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी हो गया, सही यूनिट हो गया अपने पास। इसके बाद हम बता रहे हैं स्पीड मूविंग इन अ मूविंग फॉर अ मूविंग बॉडी। लिखो, इन अ नहीं, फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन बी जीरो। फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन बी जीरो, बट 40 मिनट हो गया यार पढ़ाते हुए। भाई सबर कर लो, 45 मिनट तुम खत्म करेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है यार, तुम लोगों को समझाना पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा तुम लोगों का लेवल क्या है नहीं है यार। ठीक है, फिर भी यार हम अच्छे से करा देते हैं, ताकि जिसका लेवल खराब हो उसको भी समझ में, जिसका लेवल अच्छा उसको भी समझ में। फॉर मूविंग बॉडी स्पीड कैन बी जीरो, स्पीड सॉरी, स्पीड कैन नॉट बी जीरो। फॉर मूविंग बॉडी स्पीड कभी जीरो हो ही नहीं सकता डिस्टेंस की तरह। कैन नॉट बी जीरो बिकॉज आपको एक मूविंग बॉडी, अगर एक मूविंग बॉडी है तो उसका डिस्टेंस ऑलवेज होगा ही होगा, तो उसका स्पीड भी ऑलवेज होगा ही होगा। समझ रहे हो ना? सिंस डिस्टेंस होना ही है, distance cannot be zero, since distance cannot be zero for a moving body, for a moving body तो speed also cannot be zero। इसके अलावा इतना ही तुमसे इसमें आई थिंक पूछा जाएगा, ठीक है? और स्केलर क्वांटिटी आप बताओ ना, चाहिए और भी पॉइंट्स निकालना तो लिख सकते हो ना भाई यहाँ से। भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ये सब आप लिखवाना नहीं पड़ेगा, ये सब धीरे धीरे क्लिक करना चाहिए दिमाग में। नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो, क्लिक करेगा। अपना किया तो तुम्हारा भी करेगा यार। नेक्स्ट यार, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है क्या होता है? वेलोसिटी बेसिकली डिस्टेंस का बड़ा भाई, हम लोगों को बताए थे, डिस्टेंस इसका जन्म हुआ, डिस्टेंस में से इसका ये निकल के आया है। सिंपल, पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी सबसे पहले बार रिप्रेजेंटेशन वी और बार, स्पीड का रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्पीड का रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। और इसका वेलोसिटी वी ऊपर बार होगा, ऊपर आपका बार दिखेगा बिकॉज वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से आया है, सिंपल फंडा। ठीक है, अब वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी का डेफिनेशन वही स्पीड का डेफिनेशन, बट डिस्टेंस स्पीड का ही सेम चीज, स्पीड का ही डेफिनेशन। सब कुछ स्पीड का वेलोसिटी वही सब होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्टेंस जहाँ जाए वहाँ हटा के, वहां पर उसको हटा के डिस्प्लेसमेंट कर देना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लिख दोगे इज कॉल्ड वेलोसिटी वगैरह, ठीक है? ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता चलेगा? पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला देखो,
फॉर्मूला देख बेटा, वेलोसिटी, हम अब ऐसे लिख रहे हैं वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, छोड़ो इसको हम बाद में लिख देंगे इस तरह से, पहले पूरा लिखते दोनों बच्चे भी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैसे आया, नहीं आया, स्पीड कम बोले क्या करना है, स्पीड में आपको डिस्टेंस को एडिट करके डिस्प्लेसमेंट को वहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। वेलोसिटी को हम लोग वी बार से लिखते हैं, तो वी बार इज इक्वल्स टू एस डैश अपॉन टी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे, और आपको पता चल गया होगा, क्योंकि तुम्हारा ये एक वेक्टर, क्योंकि तुम्हारे पास डिस्टेंस जो है, क्योंकि तुम्हारे पास ये, देखो, क्योंकि तुम्हारे पास ये वेक्टर है, तो ऑब्वियसली इसको भी वेक्टर होना ही था, और वेक्टर होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्ले मतलब मैग्नीट्यूड वो दोनों यूज होगा। वेक्टर है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड होगा क्या, नहीं, इसके पास बेसिकली इसके पास दोनों चीज होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास तुम्हारा डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी इसके पास, समझ आ रहा है ना। ठीक। हाँ। अब आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखे हैं ना हम लोग, तो डिस्प्लेस इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अगर आप कोई लिखता है डेफिनेशन भाई कि डिस्प्लेस ट्रेवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, वो भी सही है, दोनों ही डेफिनेशन सही है। देखो, या तो आप डिस्प्लेसमेंट लिख दो, या तो आप डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन दोनों, मतलब आपको या तो डिस्प्लेसमेंट लिखो, नहीं तो डिस्टेंस लिखो। अगर लिख रहे हो कोई, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन वर्ड को भी आपको क्वेश्चन मतलब डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा, तभी आपका वो डेफिनेशन वेलोसिटी का होगा, वरना वो डेफिनेशन स्पीड का हो जाएगा। पता चल रहा है, हल्का सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब और क्या बचा भाई, और तो कुछ आई थिंक बचा नहीं यार। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है दोनों फॉर्मूला पे, हाँ, क्योंकि सब बच्चा वाला फॉर्मूला है ना, इस पे कुछ मतलब हम करवा नहीं रहे क्वेश्चन तुमको, ठीक है। एसआई यूनिट देख लो यार, वही मीटर पर सेकंड सेम है एज स्पीड, सब कुछ सेम है, ठीक है। और एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी का, रेट ऑफ, देखो, पर यूनिट टाइम जो हम लोग पीछे लगा रहे हैं उसको जैसे हम लोग सामने लगाएंगे, तो उसी को हम लोग पर यूनिट टाइम को ही हम लोग रेट कहते हैं, पता है ना, ये बात पता है ना भाई, नहीं पता तो सुन लो। पर यूनिट टाइम को हम लोग रेट भी कह सकते हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन को रेट ऑफ, हम लोग उस डेफिनेशन क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं हम इसको तुम्हारा डेफिनेशन हिसाब से। Velocity measures the rate of change in position. Rate of change in position is called velocity. Velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, पता, ये सब तो समझ में आ गया ना। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंटली, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं, हम पहले कंसेप्ट समझा दिए। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कैन बी जीरो, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी जीरो हो सकता है भाई, ठीक है। मूविंग अहेड, डिस्टेंस, ये दोनों हो गया, स्पीड वेलोसिटी कवर। चलो भाई, बहुत ज्यादा इससे पढ़ा रहे हैं, 45 मिनट हो गया यार। यूनिफॉर्म मोशन कर लेते हैं, सुन लो भाई, थोड़ा सा है यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी से देखो। देखो भाई, अब जो फंडा है अपने पास वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों के जो डिफरेंस आता है, जैसा से हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा, टेंशन मत लो, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, जो दे रहे हैं हो जाएगा काम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब भाई तुमको यहाँ पे हम समझाएंगे, देखना कैसे, और तुमको फिर हम बताएंगे क्या। तुमको पहली बात तो समझ में आना चाहिए भाई, मोशन मतलब क्या होता है। देखो भाई, नॉर्मल आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए मोशन मतलब होता है जस्ट चलना फिरना, बट एक हमारे फिजिक्स वाले सब्जेक्ट के लिए मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी। सिंपल सा फंडा समझ लो, माथा में घुसा लो, आज से घुसा लो, 10 साल बाद से घुसा लो, अभी से घुसा लो भाई, ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं तो भाई हर जगह मतलब टफ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा अगर आपको ये बात नहीं पता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई मेरे से पढ़ने का। बाकी सब टीचर आपको सेम बात कंटेंट देगा,
कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए पता चली है, मुझे कुछ अच्छे बुक्स को पलटते हुए पता चली है, वो बातें ही आपको मेरे में कंटेंट में मिलेगा। बाकी कंटेंट तो आपको सेम ही दिखेगा भाई, समझाने का तरीका अलग अलग होता है सबका। आपको जिससे समझ में आए आप उन्हीं से पढ़े, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, बट यही सब पॉइंट्स है जो आपको नहीं बताएगा। यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन का सिंपल फंडा है वेलोसिटी। क्या समझे? मोशन का मतलब है तुम्हारा स्पीड या वेलोसिटी। मैं तो बोलूंगा मोशन का वेलोसिटी से समझे। मोशन का सिंपल फंडा है वेलोसिटी। सिंपल मोशन का जो फंडा है वो है वेलोसिटी। ठीक। इधर में भी मोशन का मतलब वेलोसिटी होता है। अब आप सुनो क्या इसका डेफिनेशन दोगे। आपके लेवल में इसका डेफिनेशन अलग होगा, बट अब ये बात दिमाग में बैठा के रखो। ठीक है। देखो डिफाइन जो होता है वो होता है कि तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और उसका हो जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस का जाएगा, बस इक्वल को हटा के नॉन अनइक्वल कर देना, और कुछ नहीं करना है, एक शब्द हटाना है। सेम इसी को कॉपी करना है डेफिनेशन को, नॉन यूनिफॉर्म में भी, बट अनइक्वल को इक्वल को हटा के अनइक्वल डिस्टेंस कर देना है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इतना ही आज हमको आपको समझाएंगे, इतना अगर आप क्लियर हो जाएगा ना हम आपको छोड़ देंगे बस। ठीक है, तो मेरा तो भी काम है भाई। और देखो, आप कहानी बनाते रहिएगा, आपने इज दैट वो सब करते रहना कहानी पेपर में। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें क्या करोगे, इक्वल की जगह में अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके। अब भाई तू इस पे देख, एग्जांपल से समझ इसको। मान ले तू एक पाथ में मूव कर रहा है ए से बी तक। ठीक है। अब इस पाथ में तुमको मतलब ए से बी, मतलब ए से डी ले लो, ए से डी तक, ए से बी तक मूव किए, फिर बी से सी, फिर ए से डी। इधर में भी तुम्हारा सेम मूवमेंट ए बी सी डी। ठीक है। अब देखो, ए से बी तक तुमको जाने में टाइम लगता है 5 सेकेंड, बी से सी तक 5 सेकेंड, और सी से डी तक 5 सेकेंड, इक्वल टाइम ले लिया। इधर में भी हम लोग ले रहे थे इक्वल टाइम। ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करने में तुमको लगता है 10 मिनट। टाइम तुमको दे दिया 5 सेकेंड, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा जो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं तुमको पता करना है। यूनिफॉर्म सॉरी देखो हम तो बोल रहे यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, बट तुमको हम वही आपको फाइनली यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालना है। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तुम जो पहला वाला ये अपना जो है केस 1 समझ लो, इसमें आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन भी है। मेरा अप्रोच समझे भाई चीज वो करने की। ठीक है। अप्रोच समझे, इसमें मैं इतना ही करा के छोड़ दूंगा। आई नो दैट तुम्हारा माइंड टैक्स हो जा रहा है। ठीक है, नया नया सीख रहे होगा अभी। थोड़ा सा कष्ट के साथ बैठो चेयर पे अपने, बस थोड़ा देर और, बस 5 मिनट और हम लेंगे तुम्हारा, तुम्हारा जीवन का, और बस 5 मिनट मेरे को दे दो, काम हो जाएगा मेरा। देख, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, इधर में एक और हम लोग केस लेंगे। तुम वही ए से डी तक जा रहे हैं, बी बीच में आएगा, सी बीच में आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक है तुम्हारा 5 सेकेंड, एक है तुम्हारा 10 सेकेंड, एक है तुम्हारा, अच्छा कलर चेंज कर दो तो ज्यादा समझ में आएगा ना। यस। एक मान ले 5 सेकेंड, इधर मान ले, इधर इधर मान ले तू 10 सेकेंड, इधर मान ले तू 20 सेकेंड्स लगा रहे पहुंचने में डी तक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग 3 केस लिए हैं भाई, ये केस 2 है, ये अपना जो है ये केस 3 है। केस 3 को नीचे बनाते हैं यार, जब यहाँ पे केस 2 के बारे में लिखना पड़ेगा ना। केस 3, समझ चीजों को।
5 सेकंड, इधर में लग रहा है इधर से उधर, इधर में लग रहा है 10 सेकंड, इधर में लग रहा है 20 सेकंड। ठीक है, ऊपर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या क्या अनइक्वल दे देना, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। ठीक, इधर में क्या, अब देखो नॉर्मल टीचर क्या करेगा, आपको सिर्फ डेफिनेशन बता देगा, आपको केसेस बता देगा कि भाई इसका मतलब देखो, तुमको इतना घुमा देगा आँख कि देखो इक्वल डिस्टेंस मतलब 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल टाइम में देखो 5 मीटर में 10 मीटर कवर हो रहा है, 5 मीटर में 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर। तुमको नॉर्मल टीचर ये बता के छोड़ देगा कि देखो भाई केस वन में तुम्हारा जो हमारा है वो है इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम मीटर, तुमको हो गया खत्म। अब देखो फंसेगा केस कब, जब केस टू में भी नहीं फंसेगा, देखो इक्वल टाइम इंटरवल है, अनइक्वल डिस्टेंस, जो तुमको डेफिनेशन मिला वही मिला, बट नीचे वाला जो केस थ्री उसमें फंसेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, और तुम्हारे को ऊपर दे देगा, ऊपर आपको सपोज सपोज करो क्या देगा ऊपर, ऊपर आपको दे देगा 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। समझ आ रहा है, आ रहा है बाबू समझ में, 30 नहीं 40 मीटर। ठीक है, अब आपको एक बात बताओ मेरे को, आप कौन सा को यूनिफॉर्म बोलोगे और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म, देखो इसको पकड़ने के लिए क्या ट्रिक है या फिर क्या एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं पकड़ाता है ये। लास्ट वाला केस में तो आपका सर को बोलोगे सर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस भी नहीं है और इक्वल टाइम भी नहीं है, तो कैसे पकड़े सर ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। इसको पकड़ने के लिए आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताए ऊपर में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा पर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, तभी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका वेलोसिटी कितना है, अब मेरे इस पर्टिकुलर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिए तो वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा चेंज आपको मिलेगा नहीं, और आपके लेवल में आपको घुमाया फिरा मतलब टेढ़ा बेका, मतलब टेढ़ा बेका वाला लाइन देगा भी नहीं, आपके में स्ट्रेट ही देगा। पहले आप इतना तो समझ लो, इसी को पकड़ नहीं पाता मैक्सिमम बच्चे, मतलब मैक्सिमम का 90% बच्चों को ये पता नहीं होता है जो हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको मतलब एससी वर्मा वगैरह आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वेलोसिटी, इस केस में बी से सी सेगमेंट में भी तुम्हारा वेलोसिटी कितना है सर मेरा, तो वेलोसिटी सर मेरा 2 मीटर पर सेकेंड है, इस सेगमेंट में भी वेलोसिटी मेरा 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, देखो तीनों सेगमेंट में वेलोसिटी सेम मिला, वेलोसिटी इन ए बी सेगमेंट, वेलोसिटी इन बी सी सेगमेंट एंड वेलोसिटी इन सी डी सेगमेंट, तीनों सेगमेंट पे हमारे को वेलोसिटी सेम मिला। इसका मतलब है ये जो केस है ये अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, केस वन। ये जो केस है अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ठीक है, ये जो केस है इसमें देखो वेलोसिटी निकालते हैं, इसमें वेलोसिटी तुम्हारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें वेलोसिटी तुम्हारा आ जाएगा, देखो निकालो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड। तीनों का वेलोसिटी अलग अलग है, हम देखो सेगमेंट का नीचे मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये जो केस है ये अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ये कैंसर केस है, ये अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लास्ट वाला देखते क्या है, इसीलिए तो फंसे थे हम लोग। इसमें वेलोसिटी अपना क्या आ रहा है, इसके लिए वेलोसिटी आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए वेलोसिटी निकालने आता है ना, वेलोसिटी भाई 2 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए अपना वेलोसिटी कितना आ रहा है, देखो इसके लिए भी अपना वेलोसिटी आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तीनों वेलोसिटी सेम है सेगमेंट्स का। इसका मतलब ये क्या है, ये अपना जो आ गया ये हो गया अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तीनों में सेम वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर सेकेंड आपको मिल रहा है, और इसीलिए ये जो केस है ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। डन, यूनिफॉर्म मोशन का केस है। मेरे को इतना ही समझाना था भाई, समझ में आया तो बहुत अच्छा बात, नहीं समझ में आया तो फिर भी बहुत अच्छा बात। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता क्या करना है, वापस देखना है वीडियोस को। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग एवरेज एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड स्टार्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको 11 में भी लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उसमें बनेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर हम लोग एक्सेलरेशन वगैरह लॉ सब मतलब वो सब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
होप यू अंडरस्टैंड वेल द चैप्टर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको कोई फ्रेंड को देना है तो आप ये वाला क्वेश्चन देना, अगर वो बना लेता ना भाई तो फिर वो अच्छा बच्चा है। फिर वो अच्छा बच्चा नहीं है, मतलब पढ़ा है सही से और कुछ नहीं। अच्छा तो हर कोई होता है यार, अच्छा बुरा ही सबसे थोड़ी ना पता चलता है। बट इस इंसान कैसा हो तो इंसान के ऊपर है ना यार, इस तरह से पढ़ाई लिखाई तो अलग चीज है। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टूड द कंटेंट। तो हम लोग का जो लास्ट है बाकी था उसने उसको मैंने कवर कर दिया, तभी हम लोग यहाँ पे मिटा देते। अभी कैसे मिटाए यार, मतलब कटा हुआ था उसको हम लोग टिक लगा दे रहे हैं अभी, मतलब ये सब भी कंटेंट अपना कवर हो गया। हम लोग कंटेंट कवर कर चुके हैं, ठीक है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया आपको जितना दिया था। ठीक है, बाकी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको और भी बता दूंगा वीडियोस। आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। थैंक यू गाइस, होप यू जॉइन द नेक्स्ट टाइम। एंड प्लीज शेयर करो चैनल को जितना हो सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर देना यार। चलो, थैंक यू।